whatever thanks we can extend, I think it will be less for, I think, making your time available on this special day. And you had been with us about a few days back, well, as in about 10 days back. And based on that kind of what feedback from the most of the employees and their family members, I think this is a befitting kind of follow-up session. So thank you, sir, for taking out this time. uh, Dr. Bara has already given the introduction, which does not require any further kind of. He is a well-known name, and we are quite happy and kind of thankful to him for associating with us. Today, specifically the Global Fatty Liver Day 2024, the theme is Act Now, Screen Today, Let's Take Action Today for the Healthier Future. I think this theme underscores the importance of screening one's liver and encourage everyone to join the awareness. And we are committed to take it forward as a company, as a corporate, and would again like to thank Dr. Sareen and whatever help we can extend, not only making Jen kind of our employees and family members aware, but also to the extended communities around our power stations, with whom we will engage either through schools or through other activities, CSR activities, so that it can be for the larger benefit of the society. I think the kind of mission what Dr. Sareen had taken, this will be kind of fulfilled, which is going to help the society at large. Because as we understood from him the other day, when in the PMI, very in a simple way but eloquently explained the importance of liver, and liver is the root cause of most of the chronic diseases, and which is called the lifestyle diseases. I'm sure that he will explain Jain again today, Jain, for the benefit of those who could not have joined the other day, and for the benefit of also of those who could join that day as a kind of uh, follow up on that. So as he explained that day, ASH and NASH, so this fatty liver, I think it is one of the root cause, and we need to really commit ourselves, and it is in our hand. I think he explained that day very in simple way, that how we can live a very good life even with the problem. I think then it may or may not be able to be taken away, because it came out very clearly that it is genetically transmitted also. But at the same time, if one is aware and take the appropriate steps, preventive steps in their lifestyle, especially weight reduction and others, which I think it was again explained, so that we can live longer and we can live happier and healthier. I'm told that 25% of our employees are having at least one lifestyle disease. So this is a kind of indication that how important this event or this topic is. And I'm sure that Dr. Sareen, I think the time will be really well spent, and it will go in a long way. As I said in the beginning, that it's not only for our employees and the family members, but also community at large where we are operating and wherever we can reach. So I would encourage each and every one to be a patient and an attentive kind of listener during this his talk, and also don't keep that learning with yourself, but at least spread that message and try to influence the others to be vigilant and be aware about the importance of liver, and how you can bring changes in your lifestyle, which is not only going to help yourself, your family members, but I think as a Viksit Bharat, I think then the healthy people is one first of the requirement. I think that day Dr. Sareen also mentioned about
जो सुख जो होते हैं, पहला सुख निरोगी निरोगी काया, आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक जो है ना दिस इवेंट विल गो इन अ लॉन्ग वे. So with that, let me not take more time because I am not the person who knows the subject, but we have to only follow what he has really told us. So thanks, Dr. Sareen, for taking out this time, and floor is yours. Thank you. Thank you, respected Chairman Gurdeep Singh ji and Dr. Bera and the whole NTPC. I distinctly remember how interactive we had this session in your auditorium, and we had many questions. And I want to first apologize. I could not stay longer that day. I was very keen to stay back, but so my apologies. And I know you had prepared a very good healthy food, which I am sure is going to continue. This topic which I am covering is nearly same as what I said, but I'll try and give some more examples and simplify it further. पर मैं ये चाहूंगा कि आप घर जाएं तो सोचे आज अच्छा दिन था यार, कुछ काम का अपनी जिंदगी के लिए एक रास्ता मिला. तो ये रास्ता जो है ना, सब साथ मिलके हम लोग चलें. ये सिर्फ एक डॉक्टर की लेक्चर या डॉक्टर की कहानी या उसकी थिंकिंग नहीं है, ये हम सब की थिंकिंग है. और अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं तो गेट बैक टू मी. मेरा कोई और इंटरेस्ट नहीं है. मैंने उस दिन ये सवाल पूछे थे, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप में से हर एक आदमी अपने आप से, अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए पूछे कि यार 40 का हूं, मेरे डायबिटीज हो गई, क्यों हो गई? मैं 50 का हूं, डायबिटीज है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, मेरा ट्राइग्लिसराइड हाई है, और डॉक्टर के जाता हूं तो कहता है भाई तू शराब ना पी. क्यों? और क्यों मेरे लिपिड्स हाई हो गए? एक आदमी है वो 30 का ही है पर उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, बीपी हो गया उसको, तो कहता है साहब मैं बुलाऊं, मेरा फिर भी बीपी हाई हो गया, मैं तो दौड़ता भी हूँ, खाना भी ढंग से खाता हूँ. एक और बंदा है वो कहता है कि साहब मेरे को थायराइड हो गया, इसलिए मैं मोटा हो गया. तो उसे पूछा कि भाई थायराइड पहले आया कि मोटापा? बोले साहब थायराइड तो अभी 15 दिन पहले पता लगा, पर साहब बहुत दिन से था इसलिए मैं मोटा हो गया. अब ये सही है या गलत है कि थायराइड कम काम कर रहा है उससे मोटे हुए, या आप मोटे थे इसलिए थायराइड छोटा पड़ गया? आई हैव एसिडिटी, गैस, मेरी बिटिया को भी है. तो ये काम ऐसा टेंशन वाला है. एनटीपीसी में तो नहीं है टेंशन वाला, पर साहब वो रेलवेज में जाता हूँ, वहाँ पे अपना मॉल में जाता हूँ तो साहब बहुत टेंशन का काम है. मेरे साहब एसिडिटी हो जाती है, सिर में दर्द होता है, मेरे अलावा बिटिया को भी है. तो एसिडिटी और गैस क्यों हो गई मेरे को साहब? रोज दवाई खानी पड़ती. एक और व्यक्ति है वो कहता है कि साहब मेरा लड़का 26 साल का है, खाता बहुत है साहब, उसको बिल्कुल घर पे तो खाता ही नहीं है, थोड़ा हैवी हो गया और लेट रात को खाता है. चाहे उसका कॉलेज खत्म हो जाए 6 बजे 5 बजे, पर वो आता तो साहब घर पे कहीं 11-12 बजे फिर बैठ के खाता है. क्या उसका लिवर गड़बड़ हो सकता है? एक और यंग मैन है, 21 साल का, पतला दुबला है पर उसको फैटी लिवर है. वो पूछता है साहब मैं तो पतला दुबला हूँ, कहीं से मोटा नहीं, मुझे क्यों बीमारी होगी, क्या हो सकती है? एक पूछता है कि मेरे लिवर में फैट है, क्या लिवर की फैट से मेरे हार्ट पे कोई असर पड़ेगा? ये एक बड़ा कौन सा है कि साहब खर्राटे बहुत लेते हैं, वाइफ बहुत खर्राटे लेती है तो हस्बैंड टॉलरेट ही नहीं करता, हस्बैंड लेता है तो वाइफ कई बार टॉलरेट कर लेती है, कई बार नहीं. एक कहता है साहब नींद ही नहीं आती, बार बार उठना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर के अंदर. और मैं सोच ज्यादा सोने की जरूरत ही नहीं है, 5 घंटे बहुत होते हैं सर. इज इट गुड और बैड? इज ए अमाउंट ऑफ स्लीप मेक्स एनी डिफरेंस ऑन माय फैटी लिवर? somebody wants a second child and doctor says कि नहीं साहब आपका वजन तो 90 किलो है, आप थोड़े से पतले हो जाओ तो बच्चा ठीक होगा, उसको शुगर नहीं होगी, बच्चा भी मोटा नहीं होगा. इज इट राइट और रॉन्ग? हैव यू एवर थॉट कि आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी डॉटर अगर ओवरवेट है तो इज शी टू मेक अनदर बेबी?
My daughter is 18 and has cysts in her ovary. Can she marry? उसके पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पीसीओएस है, क्या बच्चे उसके शादी कर पाएगा? क्या उसके बच्चे होंगे या दिक्कत होगी? कोई कहता है कि साहब मुझे तो बिल्कुल हेल्दी रहना है, डॉक्टर साहब कोई एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, दवा दे दो कि साहब मैं ठीक ठाक रहूं, डॉक्टर के जाना ही ना पड़े, इटरनली हेल्दी रहूं। बस दवा तो नहीं है, पर हाँ रास्ता जरूर मैं आपको कोशिश। तो इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट हेल्थ, ये हर रोज की, हर जिंदगी का मर रहा है। जैसे एक और सवाल था कुछ दिन पहले, आप ही के यहाँ पूछा, साहब मैं इतना साहब तला वाला खाता हूँ, पर मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर हाँ मेरी वाइफ अगर तला हुआ खाती है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा से में वो कहती है कि साहब ऐसे। तो सेम फूड ईटन बाय टू पीपल, बट वन हैज प्रॉब्लम्स, अदर डज नॉट हैव प्रॉब्लम। एक आदमी ने कहा कि साहब मैं तो बिल्कुल, मेरे दादाजी जो हैं, पिताजी जो हैं, वो 94 के हैं, बड़े अच्छे चलते हैं, पर मेरे को देखो आप, मैं तो अभी से मेरे को बीपी हो गया, बीमार हो गया मैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं जो कि सिंपल डॉक्टर्स के पास जवाब नहीं, उन सब को आप लिख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी थोड़ी बहुत लिमिटेड समझ से आपके उन सवालों का जवाब दूं, पर बाय एंड लार्ज सारा का सारा जो मेन मुद्दा है वो है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी फैक्ट्री ठीक चल रही है, उसकी ट्यूनिंग है, उसका इंजन ठीक है, ऑयलिंग ठीक है, ओवरलोड तो नहीं हो रही, रिपेयर के लिए उसके पास थोड़ा सा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट द मेटाबॉलिक फैक्ट्री एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लिवर। तो ये आपका हाथ है, ये आप चेस्ट में लंग्स हैं, उनके बीच में आपका हार्ट आता है, और लिवर पेट के अंदर राइट साइड में ऊपर एक 1.5 किलोग्राम का ऑर्गन है। ये पैंक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, ये आते हैं। इतना तो पता होना चाहिए। अब गाड़ी में आपको पता है हैंडल कहाँ है, क्लच ब्रेक पता है, सीट कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, अपने बारे में भी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। राइट ऑर्गन इन द राइट प्लेस हैज टू बी केप्ट राइट। व्हाट डज लिवर डू? ये स्लाइड मैंने दिखाई थी, बहुत सारी, नियरली सारी स्लाइड्स वही हैं, पर इसको ध्यान से देखिए। आप जो खाते हैं अगर ज्यादा है तो उसे स्टोर करता है, और उसको प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में, विटामिन्स में, फैट्स के अंदर अलग अलग को सिंथेसाइज करता है, यूज करता है। आप जो खाते हैं वो आयरन एब्जॉर्ब करके लिवर में ही जाता है, लिवर से ही कहते हैं कि और आयरन चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके जो टॉक्सिन्स बनते हैं, आपने जो खाया उसका, जो लोग कहते हैं ना साहब वो डिटॉक्स करने के लिए गया, वो डिटॉक्स तो रोज कर, हर मिनट पे लिवर करता है, तो कोई फायदा नहीं डिटॉक्स के लिए अलग जाने का, बड़े बड़े एनीमा लेने का कोई बहुत फायदा नहीं। हाँ रोज ही अपन अगर लिवर हेल्दी रहे तो रोज, पर सबसे बड़ा काम जो है लिवर का, ब्लड शुगर को मेंटेन करना है। तो शुगर मेंटेन हुई तो सारा सिस्टम ट्यून रहता है। और जो पित्त आप बनाते हैं बाइल, उसका भी ध्यान रखना है कि वो बाइल काम का हो, उसमें ज्यादा चर्बी ना हो। एंड लिवर टॉलरेट्स ऑल, मतलब जो आप खाते हैं, जैसा पीते हैं, उन सबको टॉलरेट करता है, बट टू ए लिमिट। उसके बाद में वो कहता है बहुत हो गया, हद हो गई। व्हाट डैमेजेस लिवर? तो मैं वो फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जो आपको सबको पता है। उस दिन मैंने पूछा था, 100% लोगों को पता है कि ऐश्वर्या राय, तो उसका निक नेम है ऐश। एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब अल्कोहल से फैट हुआ, स्टीएटो का मतलब फैट, और हेपेटाइटिस का मतलब कि लिवर की सोजिश। अगर अल्कोहल पिएंगे तो लिवर में फैट होगी, इसको हम लोग ऐश कहते हैं, ये तो आप भूलोगे नहीं। और वो क्यों पीती थी ये भी आपको पता है। और बहुत से लोग हैं ऐसे, किस कारण से इधर वाला पीता है या उधर। आजकल लेडीज इतनी ड्रिंक कर रही है, यू कांट बिलीव। पर बिना अल्कोहल के भी अगर स्टीएटो मतलब हेपेटाइटिस हो, तो आप देखिए इसे हम लोग नैश कहते हैं, नॉन
अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, ये भूलेंगे नहीं, इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, देखने में खुश मिजाज है पर लिवर का क्या हाल है पता नहीं। तो व्हाट डैमेजेस लिवर? अल्कोहल, फैट एंड ऑफ कोर्स वायरसेस, हेपेटाइटिस वायरसेस। अल्कोहल के बारे में और नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम है उस दिन भी सबने पक्का कहा था कि एनटीपीसी में कोई ड्रिंक्स नहीं करता है, ना घर में, ना परिवार में, ना ऑफिस में, पर सच ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस टॉक अबाउट समथिंग ऑन फैट. So if the liver has less than 5% fat, it is a healthy liver. But if it goes above 10%, then it is unhealthy. And this is because of extra surplus calories or G. Again, I remind you, this is the abdomen. इसमें आपने अल्ट्रासाउंड किया, ये स्किन है, इसके नीचे मसल है काली वाली, उसके नीचे फैट है। तो ये देखेंगे white is fat and this liver is whitish compared to kidney. Kidney dark है, काली है, और ये थोड़ा सा whitish है. This is fatty liver. It is not a healthy liver. So what does surplus fat in the liver do? The extra fat goes into liver and inflammation. And this is read by a simple twist 20 रुपए का, जिसे ALT कहते हैं. ALT अगर ज्यादा है इसका मतलब लिवर में सोजिश है. And this extra fat can involve all other organs of the body. So let's go back to this diagram. This is the liver, मैरून कलर का होता है, ये गॉल ब्लैडर है और ये पित्त की नलकी है. अब अगर आपने एक्स्ट्रा फैट, कैलोरीज, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स लिए तो लिवर में फैट होगी. ये लिवर का एक टुकड़ा है, बायोप्सी का टुकड़ा है, और ये बताता है कि ये जितने जितने वाइट सेल्स हैं ये सब फैट से भरे हुए हैं. अगर इसमें फैट होती है तो बॉडी की इम्यूनिटी सोचती है कि यार ये तो गड़बड़ सेल है, ये तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, उसको मार देते हैं. सेल को मारने के लिए आपके वाइट सेल्स आते हैं and they cause what is known as fat induced hepatitis, steatohepatitis. अल्कोहल से भी होगी, फैट से भी होगी, फिर हीलिंग होगी जिसके अंदर स्कार टिश्यू, एंड देन फाइनली लिवर में सिरोसिस हो जाता है, हार्ड हो जाता है लिवर. इसकी जर्नी करीब 15 साल की होती है कि आपके फैट आया और सिरोसिस हुआ 15 साल के अंदर, और करीब करीब जितने लोग होते हैं 10 से 20% में सिरोसिस हो सकता है, और फिर उनमें से 2 से 10% में लिवर कैंसर हो जाता है. तो अगर भारत में, जैसा मैं बताऊंगा, इतने लोग होंगे तो कितनों के कैंसर हो सकता है. तो रीड आउट क्या है? हम लोग तो बायोप्सी नहीं करना चाहते, ना करवाने वाले चाहते हैं. तो सिंपल ब्लड टेस्ट है कि साहब उसका ALT हाई है. अब अगर उस व्यक्ति के लिवर में सेल्स में फैट है तो उसमें इंसुलिन जाके काम ही नहीं कर सकती. इंसुलिन काम नहीं करेगी और इंसुलिन प्रोड्यूस की जाएगी. धीरे धीरे पैंक्रियास गेट एग्जॉस्टेड एंड देन you get diabetes, which we believe is a liver disease. Let us understand. ये 2 नई स्लाइड्स मैंने इसमें रखी. एक 55 साल का आदमी है, आप में से कई होंगे इसके आसपास, तो उसका ब्लड शुगर 95 है. अब 2 तरह के आदमी हैं, एक के लिवर नॉर्मल है, ये सारे में कहीं फैट ही नहीं, वाइट कुछ नहीं, इक्के दुक्के में है. तो ये आदमी, इसकी ब्लड शुगर रात के खाने के बाद सुबह फास्टिंग में 95 आती है. ये 2 यूनिट के अंदर पूरी रात शुगर मेंटेन करता है. दूसरे आदमी के लिवर का जो सेल है एक भी नॉर्मल नहीं, सब में फैट ही फैट भरी हुई. तो इसके कारण इंसुलिन उसमें जा ही नहीं सकती. He uses 20 units insulin in the night to have a blood sugar of 95. 10 गुना ज्यादा इंसुलिन खर्चता है. This is called insulin resistance. So if the liver has fat, insulin is less effective, there is resistance, and this therefore leads to diabetes. So diabetes is a liver disease over a long period of time of fatty liver. फिर अगर आपके लिवर में फैट है तो वही ब्लड में आएगी. आप अपने ब्लड टेस्ट कराने गए, मालूम पड़ा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है. आपके डॉक्टर ने, बेरा साहब ने फट से दवाई लिख दी.
आप खाए, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, बड़े खुश हैं, बट नॉट रियलाइजिंग कि वो आया कहाँ से। वो सारी फैट लिवर से निकली, ब्लड में गई, और वो ब्लड में जाने के बाद आपकी आर्टरीज में गई, जिसके अंदर स्क्लेरोसिस हो गया, हार्ट हो गई, बीपी हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, कैंसर्स हो गए, गॉल ब्लैडर स्टोन बन गए। तो ये सारी चीजें लिवर में एक्स्ट्रा फैट, चर्बी के कारण, एंड दिस इज इन्फ्लेमेशन, एंड दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ऑल योर डिजीजेस। हाउ कॉमन इज दिस? ये कोई भी डरावने वाली बात नहीं थी, सिर्फ समझने की बात है कि यार मेरे को क्यों गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, क्यों मेरी किडनी डिजीज हुई, मैं आपको धीरे धीरे इस रास्ते पे दिखाता हूं। तो ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें दिखाया कि जिन कंट्रीज में 30% या उससे ज्यादा में फैटी लिवर डिजीज है वो रेड में है। सो इंडिया कम्स इन रेड। 1 in 3 at least in India has fatty liver. हम अगर पूरा जोड़ लगाएं तो करीब 24 से 30 करोड़ लोगों के अंदर फैटी लिवर है। और हमने रिसेंटली दिल्ली में जो सर्वे मोहल्ला क्लिनिक में किया, 1 in 2, मतलब लगभग 50% लोगों के लिवर में फैट थी। दिल्ली वाले बहुत काम दिमाग से लेते हैं, पर शरीर से कई बार चूक जाते हैं। So let me summarize this part so that you remember, लिवर में अगर 10% से ज्यादा फैट है तो आपके लिवर को नुकसान देगी, शरीर को। This fat causes insulin resistance. Remember this word. Insulin resistance is the cause of all metabolic diseases. Fatty liver predates diabetes, heart disease, many diseases by 15 to 20 years. Amongst the listeners, 1/3 to even half may have fatty liver. Remember, check it, आपको है कि नहीं. How liver fat causes other organ damage. हीमोग्लोबिन सबको पता है कि यार 15 है, हाँ खुश है, चेहरे में रौनक है, लाल पिंक लगता है बंदा। लिवर की हेल्थ के लिए ये ब्लड टेस्ट है, सिंपल, ALT, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा 30 से कम होनी चाहिए अगर आप पुरुष हैं, और 19 से कम अगर महिला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। कोरिया हमेशा हेल्थ के पॉलिसीज के मैटर में वर्ल्ड को लीड करता है। तो कोरिया में 1,42,000 लोगों का इंश्योरेंस हुआ हेल्थ का, 35 से और 59 की एज के थे। उनको 1990 से 92 के बीच में ALT, जो लिवर की इंजरी का मार्कर है, वो मेजर किया गया, और फिर बेस लाइन पे शुरू में जितना ALT था उसके बेसिस पे 8-10 साल उनको देखा गया। तो जिन लोगों का फॉलो में, जिन लोगों के लिवर में फैट थी, फैटी लिवर था, उनको हार्ट डिजीज दुगनी हुई। आप इमेजिन करिए 10 साल में जिन लोगों के लिवर में फैट था डबल हाई, उनका ब्रेन स्ट्रोक 30% ज्यादा, बीपी करीब 3 गुना ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स ज्यादा हो गए, डायबिटीज चौगुनी हो गई। भैया हमें शुरू में पता ही नहीं था, पर अगर हमारे फैटी लिवर है और 10 साल में 4 गुना ज्यादा डायबिटीज हो रही है तो समझ आती। लिवर के कैंसर 70% ज्यादा, डेथ 20% ज्यादा, सारे कैंसर, फूड पाइप का, आंतों का, ब्रेस्ट का, सारे कैंसर उनमें ज्यादा हो गए। ये एक बहुत मिसाल के तौर पे स्टडी है। 3 लाख, एक तो आपको कोरिया की बताई, एक मैंने बताया यूनाइटेड किंगडम के लोगों की। अब भारत के अंदर हम कोशिश करेंगे किसी जमाने में कोई बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हो तो ऐसा बैंक हो कि हम नॉर्मल लोग आगे 10 साल में क्या होगा ये प्रेडिक्ट कर सके। तो ये स्लाइड बताएगी कि अगर आपके फैटी लिवर है पर डेथ लिवर से नहीं हो रही, तो बताइए, ये सवाल आ रहा है, कितने गुना ज्यादा डेथ हो सकती है। विदाउट डेथ फ्रॉम लिवर, नॉन लिवर कॉज से डेथ जो है
50 गुना 40 गुना ज्यादा हो सकती है। So now the importance of fatty liver is you may have fatty liver but do not die due to fatty liver, but you die due to heart disease, you die due to diabetes, stroke or any other complication. So fat and fatty liver remains the core. So suppose somebody is overweight or has fatty liver. So this fatty liver will cause increase in the ALT. ALT क्या है? लिवर की इंजरी का मार्कर। तो अगर ALT हाई है तो उसका लिपिड्स भी हाई है, उसका डायबिटीज का रिस्क 4 गुना है, उसका बीपी का रिस्क 3 गुना है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर ये सारे बढ़ गए। वही फैट लिवर से निकल के आर्टरीज पे जमा हुई तो आर्टरीज हार्ड हो गई तो बीपी हो गया। लिवर के फैट ने हार्ट को चारों तरफ से घेर लिया तो हार्ट डिजीज हो गई। तो जस्ट टू रिमेंबर ये सारी शुरुआत कहाँ से होती। पर अगर सपोज अपन ने फैट निकाल दी तो ये सब रिवर्स हो जाता। घबराने की बात नहीं, देयर इज ए वे आउट, रास्ता छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। लिवर कैंसर, हम लोग सोचते थे कैंसर हेपेटाइटिस बी से होता है, तो हम लोगों ने करीब 2500 कैंसर पेशेंट लिवर के देखे पूरे कंट्री से। एंड इट वाज ए शॉक टू मी कि हेपेटाइटिस बी की जगह डायबिटीज दुगना, मतलब 100 में से 40 मरीज जिनके लिवर कैंसर था वो डायबिटीज के थे। इट इज ए शॉक। देयरफॉर नाउ एनीबडी हु हैज डायबिटीज उसको देखना यार खाली शुगर नहीं कंट्रोल, लिवर फाइब्रोसिस नहीं हो, लिवर में कैंसर नहीं। अब दूसरा एक बंदा है वो कहता है जी मैं तो पतला दुबला हूं, फैटी लिवर है, क्या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है? यस डेफिनेटली। दूसरा है वो कहता है कि जी मैं तो 21 साल का हूं, पतला दुबला हूं, अगर मेरे फैटी लिवर है तो क्या होगा? तो चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स में फैटी लिवर का क्या लॉन्ग टर्म में फर्क है? अब ये देखिए, ये भी नई स्टडी है। ये बोलते हैं कि जिनके फैटी लिवर है ब्लू वाला और जिनके नहीं है, ऐसे बच्चे या यंग एडल्ट्स बिलो 25 इसमें कितने गुना, मतलब अगर वो आदमी 25 साल फॉलो करें तो लगभग उसमें 20% लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज ज्यादा हो सकती है। मतलब जिनके फैटी लिवर नहीं है उनकी तो गाड़ी चल गई, पर जिनके फैटी लिवर है उनका क्या होगा? 5 टाइम्स मोर। और जिन लोगों के बच्चे ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, जस्ट टू सिंपली से अगर 10 ईयर का बच्चा है जो कि मोटा है तो उसके हार्ट ने इतना काम कर लिया बेचारे ने पंप कर करके कि उसका हार्ट करीब 40 साल पुराना हो गया। मतलब उसकी एज हार्ट की 40 साल के आदमी के हार्ट के बराबर है। So let me summarize, liver fat precedes diabetes, heart disease by 15 to 20 years. तो अगर फैटी लिवर है, डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, हार्ट बचा लो, रिवर्स कर लो। पर अगर ऑलरेडी यू हैव फैटी लिवर, you want to prevent diabetes, BP, heart disease and CKD, get on your act today, get a screen today and see that your fatty liver is done. And ये स्लाइड मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि एनटीपीसी इतने सारे काम करता है, पूरा रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेरा ये लेक्चर दोबारा 2 हफ्ते में सिर्फ आपको रिन्यू करने के लिए है। आपको सारी चीजें याद होंगी ऐसा मैं सोचता हूँ, फिर जस्ट ए रिवीजन है। NTPC change, bring the change and be the change to make young India healthy. मेरा मिशन है और मैं दरखास्त करूंगा कि इस मिशन में कि इंडिया, यंग इंडिया हेल्दी हो, एनटीपीसी और उसके सारे परिवार वाले एक एम्बेसडर बन जाए। रिन्यू, गेट यंग हेल्दी पीपल। अच्छा, ये आपको शायद मैंने दिखाया कि नहीं, फैटी लिवर और डिमेंशिया, मतलब अगर फैटी लिवर है उस बुजुर्ग होने के अंदर डिमेंशिया जल्दी आ जाएगा और 5% रिस्क बढ़ जाता है। पर अगर फैटी लिवर आपने घटा दिया
तो 4% रिडक्शन डिमेंशिया में हो जाता है। तो जो हम कहते हैं कि साहब बुढ़ापे के अंदर उसका दिमाग थोड़ा हेरा फेरी हो गया, वो अगर फैटी लिवर था उसको पहले ही ठीक कर लो यार, लंबी उम्र तक सही दिमाग रहे। फैटी लिवर फ्लेम्स एंड फ्रेम्स योर बॉडी। लिवर की प्रॉब्लम, कैंसर सारे, हड्डियां कमजोर होना, खर्राटे, स्लीप एपनिया, पेट में मोटा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हार्ट की और एबनॉर्मेलिटीज, किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक, सोरियासिस, ये सारे फैटी लिवर से रिश्तेदारी रखते हैं। तो फैटी लिवर is 1 in 3 at least in India, and the ALT level is an important marker which is a marker of injury. सपोज आप ड्रिंक करते हो, एनटीपीसी में नहीं पर कई लोग मिल जाते हैं, दोस्त होते हैं, तो इफ द पर्सन इज ओबीज, आप बता देना उन लोगों को, या वो डायबिटिक है कि भाई अगर तू मोटा है, तेरे डायबिटीज है, तो तेरे लिवर की डिजीज दुगनी हो सकती है, सिरोसिस, कैंसर भी डबल से ज्यादा हो सकता है। और अगर ओबीज है, डायबिटिक है, फिर शराब पी लिया, तो फिर करेला और नीम चढ़ा वाला मामला। सो एडवाइज एवरीबॉडी कि साहब जरूर, पर हाँ घर से खा के जाओ, और ड्रिंक्स जो हैं वो रहने ही दो, दुश्मन को भी ना देना। मैं सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा अपने, क्योंकि आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो आई विल नॉट बी एबल टू एड्रेस, बट एट द एंड ऑफ इट, नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज, डू आई हैव फैटी लिवर? देखो ये आदमी, इसका लिवर पतला दुबला, ये भी पतला दुबला, लिवर भी हेल्दी, हंस रहा है, स्माइल। इस बेचारे का लिवर, इसका टायर भी पिचक गया, रो रहा है लिवर इसका, यार क्यों पिचका रहे हो तुम मुझको? हाउ टू फिक्स इट? But remember, and I am again repeating, every fatty person, obese person is not bad. उसका लिवर भी हर एक का खराब नहीं होता। Mona Lisa, whichever way you look, remains beautiful and the first love of everybody in the world. But why I'm showing you is lean is not good. कि हर बंदा जो पतला है वो ठीक है, ऐसा नहीं। तो remember, if there is a family history, I'll come to it, also lean is to be remembered. Now, you will be your own doctor from now onwards. You will not need me or anybody. If in your family, दादा, नाना, मामा, माता, पिता, चाचा, चाची, किसी को भी फैमिली में, या आपको खुद को ओबेसिटी है, डायबिटीज है, बीपी, हार्ट, किडनी की डिजीज है, लिवर कैंसर और ओवरी में सिस्ट, then you have fatty liver. Get it checked. If the weight should be height minus 100, 170 अगर हाइट है तो वजन 70 है, पर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 105 घटाना है, अगर फीमेल है तो भी 105, पर अगर फीमेल है, उनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, तो 110 घटाना है। तो अगर 170 सेंटीमीटर की लेडी है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसका वेट 60 से ऊपर बिल्कुल नहीं। अल्ट्रासाउंड आपको हेल्प करेगा, फाइब्रोस्कैन एक मशीन है, और उससे लिवर की फैट पता लगती है। एएलटी का टेस्ट मैंने आपको बताया था, अगर 30 से ऊपर है मेल में, 19 से ऊपर फीमेल में, तो गड़बड़। आपके लिपिड ज्यादा है, कहाँ से आए? लिवर से। शुगर ज्यादा है, क्यों हुई? लिवर ने ज्यादा इंसुलिन मांगी। वेस्ट, वेस्ट कहाँ नापते हैं? नाभि पे, और हिप नापते हैं यहाँ पे। तो अगर आप फीमेल हैं तो वेस्ट और हिप का रेशो 0.7, मतलब उस लेडी की 40 कमर, 28 कमर होगी, और उसका वेस्ट जो है, हिप जो है, वो 40 तक हो सकती है। तो रिमेंबर द वेस्ट हिप रेशो इज सिंपल, इसमें किसी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं। तो फीमेल्स वेस्ट शुड बी लेस देन 80, मेल लेस देन 90। अगर आपने अचीव कर लिया, नथिंग लाइक इट, एंड टेल योर टेलर नॉट टू मेक न्यू क्लोथ्स फॉर यू, न्यू जीन्स फॉर यू, fit into the genes, don't fit genes onto you. Teach your children, teach your parents that they should all be like this. This I showed again. अगर गर्दन पे ऐसे काले निशान हैं, ऐसे मस्से हो रहे हैं, अभी हाथ लगा के देख लो आप लोग, हैं कि नहीं? अगर हैं तो अपना लिवर हेल्थ चेक कर लें।
और अपने बार बार कहते हैं भाई तुम्हारे पड़ोस में से कोई भी आए, एक बार तो कह देना भैया मैं भी छोटा मोटा डॉक्टर जैसा हूँ, अगर ये है तो एक बार चेकअप करा लो लिवर का। तो अब किस किस को फैटी लिवर हो सकता है? जैसा मैंने बताया डायबिटिक्स, फैटी, पहले फैटी लिवर आया था फिर डायबिटीज आई। ओवरवेट है या ओबीज है तो फैटी लिवर है। लीन है, पतला दुबला है, बीएमआई 23 से कम है पर वेस्ट ज्यादा है, बीपी ज्यादा है क्योंकि आर्टरीज में जमा हो गया, ट्राइग्लिसराइड आपका हाई है, एचडीएल कम है और शुगर हाई है, मिली हिस्ट्री। सो टेस्ट, डिटेक्ट, मैनेज, रिवर्स फैटी लिवर टुडे, एक्ट टुडे। हाउ टू फिक्स इट? अब सबको याद हो गया और मैंने इतनी सिंपल बात, पर हाँ कितनों ने काम लिया उस पर ये देखना है। सो फैटी लिवर द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ इशू टुडे, reduce it, change, and be the change to make young India healthy. I'm repeating it for the sake of repetition to emphasize. So, first is look inside. Nobody can give you health. As Chairman Saab said, and I am so happy he remembered Nirogi Kaya. So, you have to earn your health. Nobody can give you health. They can give you medicine. And so, listen to the alarms. एंड अलार्म्स आई हैव टोल्ड यू किस किस को फैटी लिवर है, पूरा आपको मैंने बता दिया। देखो एक बार फिर देख ली ये वाला, अगर इनमें से कोई भी अलार्म है, लिसन टू द अलार्म, चेंज योर एटीट्यूड। अब देखिए एटीट्यूड चेंज करने में जरा सा अलार्म हो जाए, छोटा सा भी, पूरी एनटीपीसी के लोग एक्शन में आ जाते हैं। दे आर सो स्मार्ट, सो सेंसिबल एंड सो प्रॉम्प्ट। सो टुडे you will start on this global fatty liver day with the fire alarm. If you have fatty liver or you are suspected, act today. Don't say यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं हो सकता। फायर अलार्म में थोड़ी करोगे आप। वन मोर टाइम, फैटी लिवर एंड द वेट कहानी। और अगर 10% घट जाए तो लिवर का फैट, लिवर की फाइब्रोसिस घट जाती है। एंड आई नो एनटीपीसी इज पुटिंग अप वेइंग स्केल्स एट द साइट ऑफ पंचिंग. I do hope next few months everyone knows the weight and the height and you are okay. If you are changing, why should I lose fat? अगर 4 हफ्ते भी मैंने लो कैलोरी, वेरी लो कैलोरी डाइट ले ली, 600 कैलोरी इज नॉट टू बैड, 800 पे आराम से जिंदगी निकल जाती। तो मेरे अगर 12%, 15% लिवर में फैट थी, 4 वीक्स में 5% आ जाए। भाई 4 हफ्ते मेहनत करो और फिर मेंटेन करो। यू कैन विन द वर्ल्ड, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट। माइंड का मैंने बताया ही था आपको, अगर हल्का फुल्का हो तो थोड़ा सा आदमी कूल रहता है। सेकेंड चेंज फॉर एनटीपीसी इन द होल स्टाफ। देखिए कितनी सुंदर जगह, पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक कैंप वहीं करना चाहिए, हेल्थ कैंप। एक्सरसाइज इन द आउटडोर, जगह कम है दिल्ली जैसी जगह में, पर और जगह जहां जहां जगह मिले खुली हवा में व्यायाम करना है। एंड एक्सरसाइज मींस 45 मिनट्स वंस यू स्टार्ट स्वेटिंग, उससे पहले वार्म अप। आउटडोर जिम्स वुड बी वेलकम। ट्रीट फैटी लिवर, prevent diabetes, prevent heart disease. Health cannot be given, it has to be earned. In very humble way with no conflict of interest, just to say don't outsource health to doctors. गए उसने दवाई लिखी, घर आ गए खाली। हेल्थ ऐसे नहीं मिलती, ऐसे नहीं आती। You have to own your body, say my engine is the best. And most politely, if you would have time, it's a very simple low cost book, Own Your Body. If you would like to read it, I'll feel very privileged because it will give you an idea how you can own. Don't go to doctors. This book will give you 21 real life narratives, 50 life saving tips. यार जिंदगी में कोई तो बताता कि यार मुझे कितना वेट होना चाहिए था, कितना दौड़ना था, कैसे जीना था, क्या खाना था। 50 simple life saving tips, not harsh. There are 4 lifelines, 1 or 2 I will show, and 10 commandments. 10 commandments, आता है ना कि बाइबल में
में लिखे हुए हैं। इटर्नल वेलनेस आप चाहते हो तो कोशिश करें कि उन कमांडमेंट्स को फॉलो करें। लेट्स गो टू द सेकंड चेंज, दैट इज एक्सरसाइज। What you eat goes to two places, one to muscle, one to the liver. If both are using the sugar, your sugar balance is okay. But suppose muscle तो हिल ही नहीं रही, आप दिन भर बैठे हो कुर्सी पे या couch potato की तरह टीवी देख रहे हैं. So the all the sugar which was to be used by muscle goes to liver and it converts it into fat. But if you have a good bout of exercise, this muscle will become active, sugar will be used, and your triglyceride will come down, your HDL will go up. So remember, good exercise will burn your sugar. So add muscles, reduce fat. And NTPC may encourage you, wherever you go, encourage कि भाई हमने lift नहीं लेनी. Lift is for patients, stairs are for normal people. If you are normal, use stairs and get rewarded. Third is green kitchen. I strongly feel that this is possible because you are the organization. You are the backbone of all the energy. And the energy do not need, energy does not require सारी fat वाली चीजें या carb वाली खानी. Millets, very good. Colored vegetables, best antioxidant. सारा आपका टॉक्सिन निकाल दे, रोज डिटॉक्स कर देती है. 2 apples a day, one to keep healthy, one to keep the doctor away. Haldi, kala chana, walnut, all types of seeds, and ghee is good, but उसे पचाना. White butter is better, but वो होता नहीं आजकल, बाजार का नहीं, घर का बना. So if you use this, well, you are eating good food. And of course, coffee can sometimes remove fat from the liver, less of potato and less of all the O's, glucose, fructose, maltose, all those are less. And you are healthy. And you become what, how much, and when you eat. So remember, start with the dessert plate. Don't start with a full plate. हाफ प्लेट से भी काम चल जाएगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, यार इससे आज चाहिए ही नहीं मुझे. What you should eat depends on the choice. Actually लाइफ में जो चॉइसेस आप लेते हो उसी से तो आगे चलते हो. गलत चॉइस हुई, गलत पहुंच गए, गलत ट्रेन में चढ़ गए, गलत बीमारी को ले आती. And when you eat is very important. Try to be a true Jain or a Jew. Time restricted eating is better. सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले नहीं. That is about 10-12 hours of time. Let the liver, let the body take rest. Ayurveda is good because it gives you an idea of charya. Virachana, removing is good, but not regular detox. Virachana is also a method of understanding what the body should eat and how we should clear. But the most important, this is a new message which I created. Heart of the liver is your energy balance. आपका चार्टेड अकाउंटेंट है लिवर, जितना खाओ, जितनी कैलोरीज लाओ, उतना खर्च दो. अगर ज्यादा आपने रख लिया तो फिर इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे और आपका टैक्स ले लेंगे. हेल्थ को आउटसोर्स नहीं करना है. Efforts by Indian, most people say I don't have time, and I'm so grateful to NTPC, so grateful they found time for me and to make people aware. And thanks to the leader, thanks to Singh Saab, who have led by example, by fitness, and have been kind enough to invite me second time, and that he has time for liver. I'm sure NTPC and through you all other maybe public health, public sector undertaking may learn. Yes, I have time for liver. I will keep my liver healthy. In 2021, India became the first country in the world to have fatty liver in a national program. सारी जगह 5 organs ही होते हैं जो कि non-communicable disease में. India is the only country with 6 organs including liver, and therefore
All these guidelines by health ministry are there. Now I am coming for some request which I made earlier, and I want a big support is the stronger India through a million health educated students. 1 मिलियन बच्चे अगर हम लोग हेल्दी बना दें, उनको सिखा दें, 10 जनरेशन्स ठीक रहेंगे। हमारे पास कोई उनको ये बताने वाला नहीं। एनटीपीसी के माध्यम से आप अपने तरीके से सबको बताएं कि इफ यू कीप योर लिवर हेल्दी, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, किडनी डिजीज, स्ट्रोक सब बच सकता है। तो स्माइल्स इज ए प्रोग्राम of screening, educating 1 million students. Why I am more and more keen now, this is the initial data of 13,000 18 to 25 year old in Delhi. मतलब 50% लोगों की फैमिली में या खुद में कोई ना कोई बीमारी थी, बीपी, हार्ट, और उनमें से 20% लोग चलते ही नहीं थे। 30 मिनट नहीं घर से निकले, बस में बैठे, कार में बैठे, आ गए। सिर्फ 1/3 फीमेल्स की, लड़कियों की वेस्ट ठीक थी और 30% मेल्स की वेस्ट ठीक। मतलब 70% young children are unhealthy. We need to support, and NTPC विकसित भारत में लगा हुआ है। तो विकसित कैसे होगा जब कार्यकर्ता, काम करने वाले सारे बीमार? Make them healthy. I am sure NTPC can lead by the health part in the nation. Why we should reduce fatty liver? Again a Korean study. अगर fatty liver जिन लोगों के नहीं था 2009 से 13 के बीच में 3 मिलियन कोरियंस वर स्क्रीन एंड फॉलो। जिनके नया फैटी लिवर हो, पहले नहीं था, फिर फैटी लिवर हुआ, उनको डायबिटीज डबल हो गई, हार्ट, ब्रेन का स्ट्रोक, डेथ ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों का फैटी लिवर निकल गया, फैट चला गया, उनमें डेथ 17% कम हो गई। मतलब बिना खर्चे के, सिर्फ समझ से काम लेने से यू कैन डिले योर एजिंग, यू कैन डिले योर डिमेंशिया, यू कैन डिले डेथ, maybe reduce the death in the country. This is a very strong slide. I apologize if I hurt somebody. If you are a manufacturing defect, मतलब ये नहीं, मैन्युफैक्चर किससे होता है? आदमी माँ और बाप से। अगर माँ और बाप में किसी के अंदर भी फैमिली में बीपी था, माँ को, दादा को, ओबेसिटी था, हाई कोलेस्ट्रॉल था, फैटी लिवर, कैंसर, स्ट्रोक, इफ यू आर born in such a family, you have to protect yourself. Also your children, ये आपकी ड्यूटी है to keep them underweight. नॉर्मल वेट नहीं होने देना बच्चों को। ओवरवेट हुए तो गए, मतलब आपने पेरेंटिंग नहीं की ढंग से। And gene patri is what you get from your parents, is more important than janam patri. So you make a family tree, everybody, one more time, पूरा फैमिली का एक नक्शा बनाए, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, क्या बीमारियां थी, उनमें से मुझे क्या मिला, मेरे बच्चों को क्या मिल सकता है। This is Prometheus, the god who got fire for mankind, but nobody liked. They wanted to kill, and this vulture is nibbling the liver. But in the night, the vulture goes away, and liver regenerates in the night. So remember, उसको आराम दो, खाना लेट ना खाओ, रात को liver नया बन सकता है. Also, you can donate your liver at any age. Liver doesn't age. Our Chancellor, Dr. Kalam Sahab, signed for saying, take my liver if I am deceased, but unfortunately he died somewhere else. So this is my last slide for today. Global Fatty Liver Day is just to say India have fatty liver above the age of 18. This is core to diabetes, blood pressure, heart disease, lipids, gallstones, COPD, cancers, and high ALT correlates with metabolic syndrome. Liver stiffness, I have not shown you. It correlates with dysfunction of organs. अगर liver hard हो गया,
फाइब्रोस्कैन से पता लगा तो आपका हार्ट भी हार्ड है, किडनी भी हार्ड है, लंग्स भी हार्ड हो सकते। वेट लॉस, कम से कम नॉर्मल वेट पे आए, स्लिम रहें, फिट रहें। रिमेंबर व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट। You, your institutions, schools can join Smiles or Young Smiles. And NTPC, please be the change. Every member who is listening can teach 10, mentor 100 people. And the NTPC can take a big, big responsibility of reducing fatty liver across the country. Why? You need young, renewable energy. In this slide, just to show you, this child is not healthy. उसका थोड़ा सा तो आपको दूर से बच्चा दिखा है स्कूल में, यार इसको कैसे ठीक करना है, इसकी लेडी की कमर ठीक नहीं, मोटी है. This poor man can still win if all the mothers and the children are healthy. So healthy liver, healthy Indians, keep your liver safe. And NTPC, thank you one more time for giving time to a liver guy to make your lives better. Thank you for your kind attention. Thank you, sir. Thank you so much, and for your special effort of making all the NTPCians aware of liver and its role in prevention of non-communicable diseases and leading a healthy life on this special day of World Fatty Liver Day. Now, the session is open for question and answers. So the members, our chairman sir, they can ask directly, and others can put in or write in the chat box. To I will read out the question and I will request Professor Sareen to answer. I think, Dr. Sir, just to, I think you can give them a kind of confirmation that we should participate into the SMILE program. And there were few action points which I think you people are working on that. And we will be part of this spreading the SMILE as fast and as wide and deep whatever we can do. I think this is one of the, I think we can share with Dr. Sareen. And I'm sure that there are many kind of many questions which have come. Probably I think you can display that so that Dr. Saab can read and then reply, or you can read out whatever way it works. Sir. So there are many questions. Some of them are highly technical, so I'll read out the common questions for the benefit of all. One question is that what is the best suitable exercise for fatty liver? That's a very good question. फैटी लिवर के लिए वेट कम करना जरूरी है, पर कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? मैं कह सकता हूँ कौन सी अच्छी है, बेस्ट तो मुझे नहीं पता. I would definitely say that people should do running, which is good because that is aerobic and the blood flow to the liver increases. But if you do abdominal exercises, जैसे हलासन है, भुजंगासन है, they are good for removing some fat from the liver, and if you can do them regularly with other abdominal exercises, toning up of the abdomen, they are very good. But what is the best? Now I will work on it and I will try. एक साल के बाद आपको और थोड़ा सा बता सकूं. और resistance exercises are always good. One is your cardio, but resistance exercises. So if you are lying, then you do sit-ups. Very good. Another question from the same person is that alcohol is a low carb drink. Then how it affects liver? Alcohol is, much more than your carbohydrate. 1 gram of sugar will give you 4.5 calories. 1 gram of alcohol gives you 7 calories. So your calorie intake with alcohol alone is high. Number 2, alcohol directly causes toxicity to the liver and induces fat. तो ये जिसने पिया है ना, वो सोच रहा होगा कोई तरीका मिल जाए
है कि मैं पी सकता हूँ. Well, I want to tell you that alcohol is now the commonest cause of all cancers and diseases. So therefore be careful, and it adds to fat in the liver. Next question is, sir, 40 minutes after sweat is good, but how to measure when we exercise in cold weather? That's also a very good question. बड़े practical सवाल हैं. मतलब वहाँ स्वेटिंग थोड़ा सा लेट शुरू होगा ये कह रहे हो आप. इसका मेरे पास जवाब नहीं है. ये तो बड़ा मामला टेक्निकल है. पर मैं ये कहूँगा कि अगर कोल्ड वेदर में भी 30 मिनट कर लो, चलो 15 मिनट का राशन दे दिया आपको, 30 मिनट तो कर ही सकते हैं, ठीक रहेगा. Okay, sir. इंटेलिजेंट लोग हैं. Next question is whether autophagy can be replaced by exercise for fatty liver? Sorry, what? Autophagy. Yeah, autophagy can be, yes, certainly reversed. Autophagy is a technical, it is cell death by programmed cell death, which certainly can be. Actually, you produce so many hormones when you exercise. These are called myokines. एक तो endorphins होते हैं, happy hormone, जिससे आप खुश रहते हो. But exercise produces myokines, which are 8, which are released from muscle. They will go to heart, they will go to liver, they regenerate the organs. And autophagy is reduced, cancers are reduced. The next question is very common, that whether sugar-free taken by diabetic patient in milk or tea is healthy? No, sugar-free, I totally would like to say give it up. It causes more cancers. This is a clear suggestion. It causes more intestinal problems. So you may try without sugar, but even if you have to take little sugar and then burn it, it is better than to have sugar-free. पर ये नहीं कि 4 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, वो गड़बड़ हो जाएगी. Next question is, sir, how to reverse if ALT is high? Yeah, ALT is a marker of injury. आप देखेंगे जो ही वेट कम हुआ, जो ही आप नॉर्मल वेट के आसपास आए या आपने खाने में बदलाव किया, ALT नॉर्मल आ जाएगा. पर हाँ, आपने सब कुछ कर लिया, वेट भी घटा लिया, खाना भी बदल दिया, फिर भी अगर ALT हाई है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं. दैट मीन्स दिस लिवर, ALT normal is good, but normal ALT can also be there in a patient with disease. But high ALT, no way. You have to get it right. Another question regarding fatty liver. So what is grade 1 and grade 2 fatty liver? Yeah, grade 1 is about 30% of the fat. Grade 2 is about 60% of the liver has fat. Grade 3 is more than 60%. And grade 3 is certainly very, very unhappy situation. So try and bring down even grade 1 fatty liver to normal liver. It is not acceptable. Thank you, sir. Then next is, does fatty liver and gallbladder stones have any correlation? And if so, what is remedy for gallbladder stones? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लिवर में मैंने आपको बताया था पित्त बनता है. तो पित्त है, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है वो गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है. मतलब गॉल ब्लैडर तो एक सराय है, एक स्मॉल स्टेशन है पित्त को रोकने का. तो अगर पित्त में ज्यादा फैट है तो गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होकर स्टोन्स बनते हैं. देयरफॉर गॉल स्टोन इज ए लिवर डिजीज. और जिनके गॉल, याद रखें 10 से 15 साल में उनको ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज, कैंसर्स हो सकते हैं. सो अगर आपको गॉल स्टोन है तो बच्चों को 10 से 15 साल यंगर एज में, आप 40 के हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बच्चों को हो सकता है 20-25 में ही हो जाए. सो रिमेंबर, इट्स इंडेक्स ऑफ फैटी लिवर. Sir, is there a relation between the same fatty liver and kidney stones? Not really, not kidney stone but kidney disease. मुझे लगता है चेयरमैन साहब का भी बहुत समय हो गया. He has given so much time. What you can do is you can forward some of these questions and I can answer them.
If there is any burning last one or two, we will take them. Okay, sir. Very common questions. Can lemon juice reduce fatty liver? ये सारे पढ़ के आए हैं आज. Lemon juice is very good for two reasons. क्योंकि ये आपका आयरन एब्जॉर्प्शन 20% बढ़ा देता है. जैसे आपने खाए सलाद लिया, ग्रीन वेजिटेबल ली, तो उसका जो आयरन है वो सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो फेरस फॉर्म में होता है. जो आपने जूस लिया या लेमन डाला वो फेरिक में आ जाएगा और 30% एब्जॉर्ब हो जाता है. तो आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे यहाँ लोग होते हैं नींबू डाल के ही खाते हैं, या अदरक में नींबू डाल लेते थे, वो साथ में लेते थे. सो नींबू, ऑरेंज जूस, दे आर वेरी गुड टू कन्वर्ट नॉन एब्जॉर्बेबल आयरन टू एब्जॉर्बेबल. बट फैटी लिवर कम होगा. हाँ, अगर आप लेमन जूस के साथ में कुछ और ना खाएं, सिर्फ लेमन जूस ले अच्छा है, पर उसके साथ और चीजें लेते रहें, ड्रिंक्स वगैरह, तो गड़बड़ हो जाएगी. Thank you, sir. There are a lot many questions, but the last question is a common one. What initiatives can we take as an organization to promote organ donation? It's a very good question, sir. एक तो शपथ होती है दिखाने के लिए. चेयरमैन साहब ने कहा, सबने यार शपथ ले ली मैंने, तो अब मैं ऑर्गन डोनेट करूंगा. और एक दिल से होता है. दिल से एज एन एसोसिएशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप सब लोग लें कि अगर आप अमर होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव फॉर एवर, प्लीज साइन टुडे फॉर ऑर्गन डोनेशन. क्योंकि आपका डीएनए, आपका ऑर्गन किसी में भी लगा तो वो हमेशा आपका डीएनए रहेगा. ऑर्गन डोनेशन के लिए एक कैंप लगा सकते हैं. आई कैन सर्टेनली ऑर्गेनाइज दैट. एनटीपीसी के सारे लोग जो हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए शपथ ले लें. यू विल बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन where people say yes, we voluntarily opt for organ donation on deceased death. You do not need to ask anybody, क्योंकि मेरे ऑर्गन में लेके नहीं जाऊंगा तो जला दिए जाएंगे या दफना दिए जाएंगे. If you want, NTPC can take lead. Organ donation is good. अच्छा, लिवर का आधा भाग दे दीजिए तो वो 4 हफ्ते में नया आ जाता है. The liver is the only organ like hair which can be donated and it will come back to normal size. So organ के लिए आप लोग लीड लें एंड मुहिम चलाएं. ऑर्गन डोनेशन डे आने वाला है, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूं. Thank you so much, sir. There are a lot many questions and appreciations, and many have also asked for the sharing of the slides. We sincerely thank you for your the way of making others understand the importance of liver or any topic for that matter. Thank you so much for sparing so much time. I thank our chairman, sir, also for sparing his valuable time for the betterment of all the employees and their family members. And I thank all the participants. There are more than 400 participants on MS Teams and many more on YouTube also. So thank you all. Thank you, Dr. Saab. Thank you, sir. Thank you very much for sparing time. I know it is a repetition for what I said, but maybe it will go a little long way और memory एकदम solid हो जाएगी अब. और NTPC का बहुत बहुत धन्यवाद for all the support for the programs, for your schools, for your smiles and the eating habits. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Thank you.